Okay, hello everyone. Now today we will going to start the new topic, that is evidences of evolution. In the previous lecture also we were discussing about the example which shows the evidences of evolution only, or you can say the example we have discussed about, like we have discussed for evolution of eyes, evolution of feather, and also the artificial selection in case of cabbage, wild cabbage plant. We have discussed it कि in those example also evolution changes the character in the origin or original species, and that leads to speciation, or that leads to evolution of a new species which is entirely different from its original one. Now here also, today also we will going to continue with that topic only, the evidences of evolution only. Now this evidences of evolution include here we will going to talk about the evidences in case of morphological and anatomical evidences. Now what is this morphological and anatomical evidences? Is morphological, we all know, it means the external features or external appearance, जो बाहरी तौर से, जो बाहर से कोई features हमें दिख रहे हैं, external structures जो होते हैं उनको हम morphological कहते हैं. Anatomical मतलब जो internal structures होते हैं उन्हें हम anatomical part कहते हैं. तो morphology is the external parts and anatomical is all about the study of internal parts of any organism. Now if we talk about the morphological and anatomical evidences of evolution, here we will going to discuss two main phenomena which exactly shows the evidences of evolution. First is homology or homologous organs. Now homology is the phenomena in which what we are doing is basically जब हमारा evolution हो रहा था किन्हीं भी organism में, चाहे वो plant हो या animals हो, उन organism में अगर evolution हो रहा था, तो आज जो present day में जो भी animals या जो भी plant species present हैं, उन present day के plants और animal species के जब हम morphological या anatomical characters को study करते हैं या diagnose या analyze करते हैं, एंड हम जब आज के प्रेजेंट स्पीशीज के मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं विद द फॉसिल्स ऑफ द एंसेस्ट्रल स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब हम आज के प्रेजेंट स्पीशी के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को कंपेरेटिव स्टडी करेंगे किन से, जो उनके एंसेस्ट्रल स्पीशीज थे और उनके जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स थे उनसे जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये शो होता है कि यस, today's species has been evolved or has been originated from the existing species जिनके fossils हमें आज available है या हमें मिले हैं. That shows कि कितने या कितनी जनरेशन तक क्या क्या चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से आज के जो एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं किसी भी एनिमल या प्लांट के स्पीशीज में, वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं या सिमिलर या डिसिमिलरिटी शो कर रहे हैं विद देयर एंसेस्ट्रल और विद देयर ओरिजिनल स्पीशीज. हम यहाँ पे बात करते हैं होमोलॉजी की. होमोलॉजी वो स्टडी है इन विच हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. इट इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स, दैट इज वेदर इट इज मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल पार्ट्स वी आर स्टडिंग, विच मतलब एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स की जो हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं. इफ वी आर यूजिंग द वर्ड कंपैरेटिव, दैट मीन्स हम आज की प्रेजेंट स्पीशीज के स्ट्रक्चरल पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं उनके फॉसिल्स या उनके एंसेस्ट्रल स्पीशीज के एनिमल्स के पार्ट्स से या मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल पार्ट्स से, तो हमें कोई ना कोई लिंक हमें शो होता है. और वो लिंक इस तरह से होता है कि या तो हमें ये मिलता है कि आज के जो ऑर्गन्स हैं दे आर टोटली सिमिलर in the structural feature with their ancestral parts या with their ancestral species, but they are dissimilar in their function. तो या तो वो functionally similar होंगे या dissimilar होंगे, या वो structure wise similar होंगे या dissimilar होंगे. होमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? This is the comparative study of different
morphological or anatomical structures of present species with structures of the ancestral species. दैट मीन्स हम यहाँ कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल की स्ट्रक्चर की. आज की स्पीशी के स्ट्रक्चर को हम कंपेयर जब करते हैं एंसेस्ट्रल स्पीशीज से, तो वो क्या शो करता है? शोज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर्स और origin point but dissimilar in their functions. What does it mean? कि जब हमने कुछ प्रेजेंट स्पीशीज के कुछ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स देखे, उनके एंसेस्ट्रल से कंपेयर किया, तो हमें क्या देखने को मिला कि उनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो बहुत हद तक सेम है. मतलब पर्टिकुलरली किसी स्पीशीज से कुछ डिफरेंट न्यू स्पीशीज अराइज हुई होंगी. मतलब एक पर्टिकुलर ऑरिजिन पॉइंट से बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज जब इवॉल्व हुई, तो उन डिफरेंट स्पीशीज जो इवॉल्व होके आज जो स्पीशीज वो प्रेजेंट है, स्टेबल स्पीशीज, उन स्पीशीज में जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, उनके स्ट्रक्चरल पार्ट बहुत हद तक सिमिलर हैं उनके कॉमन ऑरिजिन पॉइंट से. दैट मीन्स द स्पीशीज फ्रॉम विच डिफरेंट number of species evolve, those different number of species have similarity in their structural part with their ancestral one, but their structural parts, whatever they are playing role, that means the functions जो भी वो follow कर रहे हैं उनके वो structural part वो quite dissimilar है to या with their ancestral one. That study is known as homology. and जो organs इस तरह का show कर रहे हैं, जो organs सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स में बट डिसिमिलैरिटी शो कर रहे हैं फंक्शन में, ऐसे ऑर्गन्स को हमने नाम दिया होमोलोगस ऑर्गन्स. दिस पर्टिकुलर होमोलॉगी इज ड्यू टू अ टाइप ऑफ इवोल्यूशन नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये जो इवोल्यूशन है जिसकी वजह से ये होमोलॉगी आई है, जिसकी वजह से ये होमोलोगस ऑर्गन आज एक न्यू इवॉल्व्ड स्पीशी में प्रेजेंट हैं, ये एक तरह से इन्होंने इस तरह से इवोल्यूशन किया है और उस पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को हमने नाम दिया है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल उस समय पे एंसेस्ट्रल टाइम पे या उस इवोल्यूशन जब हमारे अर्थ में हो रहा था ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, उस समय पे कोई पर्टिकुलर कॉमन स्पीशी रही होगी ए which was living in a particular environmental habitat or environmental condition, but due to certain natural calamity or due to limited food supply or for searching food and water, the member of these species A has been migrated to different area or different habitat. अब ये कुछ मेंबर इस ए स्पीशी के यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए. अब वो जिस जिस डायरेक्शन में या जहाँ जहाँ गए उन्होंने खुद को वहाँ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट किया होगा, और अडाप्ट की वजह से कुछ कैरेक्टर उनमें नए डेवलप हुए होंगे. सो दोज चेंज्ड डेवलप्ड कैरेक्टर must have been inherited to the generation and again to the generation. So many generation the changing character was passing on, and thereafter, after passing through millions of generation, a new species must have been evolved in that particular environmental condition, but their origin point was common. So you can say from a species there must have been arised more than one species has been evolved, but since all these different species which has been evolved from a common origin point, they have the structural part, whether it their four limbs और उनके wings बोल लो या कुछ और बोल लो, eyes बोल लो, उनके structural part तो इस A species से बहुत हद तक similarity मिली, लेकिन उनके functions different मिले. ये जो इवोल्यूशन हुआ जिस तरह से, इस तरह के इवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में गए, मतलब वो डाइवर्ज हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं.
तो इस तरह के इवोल्यूशन को हमने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, विच इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि ये रेडिएशंस फैल रही हैं एंड ये रेडिएशन डिफरेंट मेंबर्स जो अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएशंस की तरफ फैले, उन्होंने खुद को अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट किया एंड वो एक न्यू डिफरेंट स्पीशी में इवॉल्व हो गए, तो इसीलिए इसको एडेप्टिव रेडिएशन भी कहा गया। एज वेल एज ये वही फिनोमिना है जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो डार्विन ने दी थी, और उसका जो सेकंड की पॉइंट था ब्रांचिंग डिसेंट, वो भी इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ब्रांचिंग डिसेंट मींस एक पर्टिकुलर ब्रांच है ट्री की, एक पर्टिकुलर ब्रांच है, एक पॉइंट है ट्री का, और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, डिसेंट हो रहा है, फैल रहा है, तो दैट वाज आल्सो नोन एज ब्रांचिंग डिसेंट। दैट मींस डार्विन ने एक्चुअली जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी समझाई थी, तो उसने इवोल्यूशन का जो मैकेनिज्म बताया था वो उसके अकॉर्डिंग भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही उसने समझाया था। डार्विन ने अपने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बर्ड्स का एग्जाम्पल लेके समझाया था। गैलापागोस आइलैंड पे उसने बर्ड्स के स्पीशीज देखी थी, जिसे उसने डार्विन फिंचेस भी नाम दिया था। तो ये होमोलॉजी के हम थोड़े एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? इसमें हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस भी आता है। जो गैलापागोस आइलैंड के पाए जाए, वहां पर उसने क्या देखा था, जब वो गैलापागोस आइलैंड को विजिट कर रहा था, वहां पे उसने एक डिफरेंट स्पीशीज देखी, डिफरेंट बर्ड्स की स्पीशीज देखी। अब ये जो बर्ड्स की स्पीशीज देखी, उसने क्या देखा कि इन बर्ड्स के अंदर बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इन सबकी बीक जो थी, शेप ऑफ बीक सबकी अलग अलग थी। जो फिंचेस थी उनकी शेप ऑफ बीक्स वाज डिफरेंट। अब स्पीशीज अलग थी ड्यू टू चेंजेस इन द शेप ऑफ बीक। नाउ उसने क्या देखा कि जो शेप ऑफ बीक सबकी अलग अलग थी, वो बीक की शेप की वजह से वो फूड उनका सबका अलग अलग था। दैट मीन उनकी जो फीडिंग हैबिट थी, जो फूड सोर्स था, वो अलग अलग था। कोई बर्ड पानी में से निकाल के फूड को खा रही थी, कोई बर्ड कार्निवोरस थी, कोई बर्ड जनरली से फ्रूट्स खा रही थी। तो उसने क्या देखा कि जो शेप ऑफ बीक्स थी विच वॉज डिफरेंट, जैसे अगर जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स थी, अगर वो फ्रूट को खा रही थी, तो उनकी बीक्स की जो शेप है वो ब्लंट था, ब्लंट शेप ऑफ बीक टू कैप्चर द फ्रूट, जैसे एक पैरेट का होता है। देन उन्होंने देखा डिफरेंट शेप्स में, अगर नट्स खा रहे थे, सीड खा रहे थे, तो पॉइंटेड बीक्स थी, क्योंकि पॉइंटेड बीक होगी तो नट्स को तोड़ तोड़ के खाएंगे टू ब्रेक। देन अगर फूड फ्लैश था, हंटिंग करके खा रही थी, तो कर्व्ड एंड हुक्ड बीक, कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स थी, क्योंकि वो कर्व्ड और हुक होगी तो वो फ्लैश को, मतलब उनका जो भी प्रे था उसको कैच करेगी पकड़ने के लिए। एंड अगर वो एक्वेटिक फूड को खाना चाह रही थी, फिशेस को, तो लॉन्ग बीक्स थी, so that it can easily penetrate their beak inside the water and can catch the fishes or any aquatic food. So in this manner, different shapes of beaks in different birds, that shows different species in birds. अब इसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था डार्विन ने? इन्होंने समझाया था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ही समझाया इसमें, कि उस टाइम पे उस गैलापागोस आइलैंड में ये सारी जो बर्ड्स, आज जो डिफरेंट स्पीशी की बर्ड वहाँ प्रेजेंट है, वो सब एक ही स्पीशी से ऑरिजिनेट हुई है। पहले वो बर्ड की एक ही स्पीशी थी, लेकिन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट मेंबर्स जो थे उस एक ही पॉपुलेशन में से वो माइग्रेट हो गए होंगे या अलग अलग डायरेक्शन में चले गए होंगे। तो ड्यू टू changes in their environmental condition and due to availability of a type of food to them, they have adapted to their food, and जिस तरह का भी उनको फूड मिला उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो बीक की शेप थी वो मॉडिफाइड होती गई, एंड दैट मॉडिफाइड कैरेक्टर इज देन ट्रांसफर टू दी जनरेशन टू जनरेशन। तो जब वो जनरेशन टू जनरेशन वो शेप ऑफ बीक चेंज होती गई, एंड उसके बाद एक न्यू स्पीशी इवॉल्व हुई विद एंटायरली डिफरेंट शेप ऑफ बीक एंड विद एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर। तो इनका जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो उनके ओरिजिन पॉइंट से बहुत हद तक सिमिलर हुआ, बट फंक्शन जो था, क्योंकि सबका फूड खाने का तरीका जो था वो अलग अलग था,
So that is also explaining the homology और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. होमोलोगस ऑर्गन के और भी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल if we talk about forelimbs of man, cheetah, horse, bat, एलिफेंट. फाइन. अब यहाँ पे ये क्या है बेसिकली, अगर मैं इनके फोर लिम्स की बात करती हूँ तो फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, हॉर्स, बैट, एलिफेंट, इन सबके जो फोर लिम्स हैं इनका स्ट्रक्चरल फीचर तो बहुत हद तक सिमिलर है. स्ट्रक्चरल मतलब इनका जो एनाटॉमिकल फीचर्स है, इनके बोन्स जो हैं वो बहुत हद तक सिमिलर हैं. दैट मीन्स ऑल हैव द बोनी पार्ट एज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, carpal, metacarpals, all the bony parts are similar but their functions are different. Like human being का जो four limbs है वो किसी भी चीज को पकड़ने में काम आता है, grasping के लिए काम आता है. चीता का जो four limbs है वो again दौड़ने के लिए काम आता है, running के लिए काम आता है. Horse का भी four limbs running के लिए, bat का basically again for climbing and elephant का walking के लिए. So different animals have different बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो मैन, चीता, हॉर्स और बैट जो है हम इसको एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं. दीज आर ऑल मैमल्स. फाइन. तो हम यहाँ पे जो फोर लिम्स की बात करते हैं वो बात करते हैं मैमल्स की, ऑल मैमल्स. बर्ड्स की फोर लिम्स की बात करें, वेल्स की फोर लिम्स की बात करें, हॉर्स की फोर लिम्स की बात करें. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं इन सबके फोर लिम्स की बात कर रही हूँ तो इनके बोनी पार्ट सब में सेम है, स्ट्रक्चरल पार्ट सेम है, लेकिन फंक्शंस अलग है. लाइक बर्ड्स का जो फोर लिम्स है वो बाद में विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है और फ्लाइंग में हेल्प करता है. वेल्स के जो फोर लिम्स है वो उनके स्विमिंग में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं. तो फंक्शनल डिफरेंट है. मैमल्स के जो फोर लिम्स है, किसी मैमल में वो रनिंग में हेल्प कर रहे हैं, किसी मैमल में लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम बोले तो ह्यूमन बीइंग्स के जो फोर लिम्स है वो किसी भी चीज को पकड़ने में काम कर रहे हैं. तो फंक्शंस आर डिफरेंट बट सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चरल पार्ट. हाँ, थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं इसमें प्लांट्स के केस में. दैट इज अबाउट टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट. That is tendrils of climber, that is grapevine or pea plant you can say, and spines of bougainvillea, or you can also take an example cactus. Now see, since tendrils of pea plant and spines of bougainvillea या spines of जो cactus के जो कांटे होते हैं, they both are basically leaf modified, or you can say the stem modification you can say. That means here we are talking about leaf modification क्योंकि pea plant के जो tendrils है वो भी leaf के modification and bougainvillea के जो spines है वो भी leaves के modification ही है. but structural part तो दोनों का same है, origin same है, लेकिन functions different है. tendrils help करता है climbing में pea plant को, और spines जो होते हैं they protect from या protect the plant from predators. predator मतलब grazing animals जो प्लांट्स को खाते हैं. डेजर्ट एरिया में सिंस कैक्टस प्लांट मेनली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे प्लांट्स को ग्रेजिंग एनिमल्स के खाने से बचाने के लिए उनमें जो कांटे होते हैं वो मॉडिफाइड लीफ का ही पार्ट है, जस्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल इन डेजर्ट कंडीशन. तो अगेन स्ट्रक्चरल पार्ट तो सेम है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है. अगेन अगर हम इनके और एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम लेग्स की बात करते हैं, लेग्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स. ठीक है. अब लेग्स जो हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एंड इंसेक्ट्स के केस में हम बात करें, डिफरेंट इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रेट्स में हमारा वर्टिब्रेट्स में तो हमारे सारे आ जाते हैं आपके क्वाड्रेट्स वगैरह. ठीक है. एंड इंसेक्ट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ जाता है. तो इन दोनों के भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल पार्ट सिमिलर माने जाएंगे, लेकिन फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत हद तक डिफरेंट हो जाते हैं. किसी में वॉकिंग में आएगा और किसी में रनिंग में काम आता है.
फाइन, और किसी में स्विमिंग में काम आते हैं। तो डेफिनेटली डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं इनके सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और स्ट्रक्चरल पार्ट सेम होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलॉगी और होमोलोगस ऑर्गन। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट, और नेक्स्ट एविडेंस इज एनालॉगस ऑर्गन्स। Now analogous organ is the comparative study again of anatomical or morphological features of present species या between present species and their ancestral one, showing similarity in their function but dissimilarity in their structure। ये बिल्कुल डिफरेंट है होमोलोगस से। इसमें क्या शो हो रहा है? सिमिलरिटी इन फंक्शंस शो कर रहा है ये, बट dissimilarity in structure, ये स्ट्रक्चरल पार्ट्स में डिसिमिलैरिटी शो कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज बहुत सारी होगी, लेकिन अलग अलग एंसेस्ट्रल स्पीशीज से एक कॉमन स्पीशी इवॉल्व हुई होगी। इस वजह से इनके स्ट्रक्चर तो डिसिमिलर है, लेकिन फंक्शंस सेम है, क्योंकि वो सेम कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन करूँ, इसका मैकेनिज्म, तो हो सकता है उस समय पे डिफरेंट स्पीशीज रही होंगी एंसेस्ट्रल टाइम पे, लेकिन सिंस अगर इसके कुछ मेंबर किसी पर्टिकुलर एक ही एनवायरनमेंट में आ गए हों, और इस स्पीशी के मेंबर भी एक ही एनवायरनमेंट में आ गए हों, और इस स्पीशी के भी कुछ मेंबर एक ही एनवायरनमेंट में आ गए हों, एंड इसके भी कुछ एक ही एनवायरनमेंट में आ गए हों। जैसे मान लो अगर ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो अलग अलग टेरेस्ट्रियल लैंड पे रह रही हैं, बट अगर किसी कारण से ड्यू टू लिमिटेड फूड सप्लाई दे हैव कम टू अनदर हैबिटेट, फॉर एग्जाम्पल इफ वी से इन वाटर, जैसे पानी में आ गए हो, तो पानी में रहते वो अपने अंदर वैसे ही स्ट्रक्चरल फीचर्स अडेप्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली रहने लगेंगे, और उसके अकॉर्डिंग में चेंजेस आएंगे। तो ऑब्वियसली उनका जो फंक्शन है वो तो सेम हो जाएगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फीचर हैं वो डिसिमिलर होंगे। बिकॉज हो सकता है ए स्पीशीज के जो मेंबर यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, या बी स्पीशीज के मेंबर जो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं वाटर के अंदर, या सी और डी के जो मेंबर यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, वो स्पीशीज जो भी अलग अलग स्पीशीज में ये इवॉल्व हुई है, उनका जो पर्टिकुलर एक ऑर्गन जो होगा जो पानी में रहने के लिए उन्हें हेल्पफुल होगा, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, टू फ्लोट इन द वाटर, फाइन। तो वो स्ट्रक्चरल फीचर अलग अलग स्पीशीज में, जो भी इन स्पीशीज इवॉल्व हुई है, वो स्ट्रक्चरल फीचर अलग अलग होगा, लेकिन उन सब स्पीशी के अंदर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का जो फंक्शन है वो सेम होगा। सो दिस इज नोन एज एनालॉगस ऑर्गन और द स्टडी नोन एज एनालॉगी। अब इसके अंदर हम ये जो इवोल्यूशन शो करते हैं, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फाइन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल एनालॉगस ऑर्गन के केस में जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो है सबसे पहले विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, फाइन। जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं, इसमें हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है इसे, क्योंकि जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो 4 लिम्स से मॉडिफाइड हुए हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के विंग्स जो हैं 4 लिम्स से मॉडिफाइड नहीं हुए हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स में तो 4 लिम्स हाइंड लिम्स अलग होते हैं, इनके विंग्स अलग डिजाइन या अलग तरीके से ओरिजिनेट होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फीचर अगेन डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। विंग्स दोनों में हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। विंग्स हेल्प इंसेक्ट्स टू फ्लाई, दैट मीन्स बटरफ्लाई को भी विंग्स, इंसेक्ट्स है बटरफ्लाई, उसको भी फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है, और बर्ड्स को भी फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन अगेन एक इंसेक्ट है, मतलब बेसिकली स्कॉर्पियन भी इंसेक्ट है और हनी बी भी एक इंसेक्ट है, बट इनका जो डंक होता है, स्टिंग जो होता है जिससे काटते हैं, इनका स्ट्रक्चरल फीचर तो अलग है, लेकिन इसके स्टिंग का, दोनों का स्टिंग का एक ही काम है, जस्ट टू पियर्स फॉर प्रिवेंटिंग देमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसके अंदर स्टिंग के अलावा, दैट इज फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर
of whale, fins of fishes and flippers of whale. That means फिन्स जो होती हैं फिशेस की या वेल की, जो फ्लिपर होते हैं, दोनों में फंक्शनल फीचर एक ही है, इनका फंक्शन एक ही है, टू हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, बट अगेन स्ट्रक्चरल फीचर्स आर डिफरेंट. फिशेस में अलग होता है क्योंकि फिशेस जो है वो अलग फाइलम को बिलोंग करता है, बट वेल्स आर मैमल्स. तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल है, डिफरेंट बोनी पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इन दोनों के, एनाटॉमिकल फीचर अलग है लेकिन फंक्शंस आर डिफरेंट. इसमें एक एग्जांपल मैं प्लांट का ले रही हूँ, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. अगेन दोनों केस में अगर हम बोलें तो स्ट्रक्चरल फीचर डिफरेंट है, एक तो है स्टेम मॉडिफाइड, एक है रूट मॉडिफाइड, बट फंक्शन दोनों का सेम है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ फूड. सो दिस इज द एनालॉगस ऑर्गन और एनालॉगी, जिसमें हम डिफरेंट कंपैरेटिव स्टडी करके हम ये शो करते हैं कि यस इवोल्यूशन हुआ होगा. एंड जो स्पीशी आज प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल स्पीशी से इवॉल्व हुई होगी, इधर बाय फॉलोइंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और बाय फॉलोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से हमारे होमोलोगस ऑर्गन प्रोड्यूस हुए थे और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से एनालोगस ऑर्गन्स प्रोड्यूस हुए. नाउ द थर्ड एविडेंस इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. Now what are the vestigial organs is all about. Vestigial organs का मतलब होता है सीधा सीधा ये वो ऑर्गन है जो उस समय पे एंसेस्ट्रल स्पीशी में तो प्रेजेंट थे और फंक्शनल भी थे, लेकिन ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन वो ऑर्गन्स यूज नहीं हुए, उनका डिसयूज होता गया या कंटिन्यूसली वो जनरेशन टू जनरेशन उनका यूज मिनिमाइज होता गया. तो वो ऑर्गन की साइज में, फंक्शनल एबिलिटी में, स्ट्रक्चरल पार्ट में रिडक्शन होता गया. एंड नाउ दीज ऑर्गन्स are present in present day species but they become non-functional. तो आज भी उन species में, या वो आज की जो species हैं, present day की species हैं, जिस भी species से वो evolve हुए हैं, उन species से जहाँ से वो evolve हुए हैं उनके origin point में वो organ function भी था और present भी था. आज भी वो present है लेकिन functional नहीं है, inactive है. ऐसे organs को हम vestigial organ कहते हैं. That means the organs which are present in today's evolved species but are non-functional. बट ये ऑर्गन्स पहले फंक्शनल थे और पहले प्रेजेंट भी थे, बट दिस हैड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन कंटिन्यूसली ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. ये कहीं ना कहीं लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट करता है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि वही कैरेक्टर ट्रांसफर होता है जो कि जर्म प्लाज्म या जर्म सेल में प्रेजेंट होता है. तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल लाइक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई. सिंस वी ऑल नो कि सबसे पहला जो स्पीशी पानी में इवॉल्व हुआ था वो थी फिशेस. फिशेस से इवॉल्व हुई हमारी, बेसिकली जब फिशेस लैंड पे आने लगी तो एम्फीबियंस आए थे सबसे पहले, फिर एम्फीबियन से इवॉल्व हुई थी रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स से हम दो स्पीशीज इवॉल्व हुए थे एक साथ, मैमल्स एंड बर्ड्स. तो आज भी हम ह्यूमन बीइंग मैमल्स में ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है प्रेजेंट है, बट इट इज़ नॉन फंक्शनल. हमारे जो आईज के बिल्कुल कॉर्नर पे ये जो एक मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉन फंक्शनल है, प्रेजेंट है जस्ट, दैट इज नॉन फंक्शनल इन आवर बॉडी बट इट वॉज फंक्शनल इन फिशेज. दैट मीन्स द एनिमल और द स्पीशीज वो ऑल लिव्स इन वाटर, वहाँ पे ये फंक्शन होती है क्योंकि एक झल्ली सी होती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो उनकी आई को ऐसे कवर करती है टू प्रिवेंट देयर आईज फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय वाटर. बट सिंस हम लोग मैमल्स जो हैं नाउ वी आर स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड, हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई थी तो हमारे अंदर वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है लेकिन वो इनएक्टिव है, नॉन फंक्शनल है. सेकेंड ऑर्गन अगर हम बोलें, इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन पार्ट है ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में, हम लोगों में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आज प्रेजेंट है. लाइक हमने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन, उसमें पढ़ा था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द एंड्स. तो वहाँ पे ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो एक्सटेंशन पार्ट है, एक नर्व होती है छोटी सी, लेकिन पहले ये एक्टिव थी,
आज हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन फंक्शनल नहीं है। पहले इसका काम होता था कि इस जगह पे सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रीट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुआ करते थे जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवा देते थे। लेकिन सिंस ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन आज हमारा जो फूड है, डाइट है, सेल्यूलोज बेस्ड नहीं है, तो इसीलिए इन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सर्वाइव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा, क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम की ज़रूरत तब पड़ेगी जब उसको सेल्यूलोज सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा। तो दैट इज़ वाई धीरे धीरे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो गए, रिमूव हो गए, और आज हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वो ऑर्गन तो प्रेजेंट है, वो पार्ट जरूर प्रेजेंट है, बट इट इज नॉन फंक्शनल। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया। अगर मैं और भी एग्जांपल की बात करूं तो यस, एक्सटर्नल ईयर, हमारे ये जो ईयर्स का एक्सटर्नल पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज द बेसिकली अर्लियर, ये पार्ट आज हमारे अंदर नॉन फंक्शनली कार्टिलेजिनस है, इसमें कोई बोन नहीं होती, लेकिन अर्लियर इट वाज फंक्शनल एंड इट वाज मूवेबल। ये ऐसे मूव होती थी पहले के स्पीशी में, और जब ये मूव होती तो दिस इज बेसिकली टू रिसीव मोर एंड मोर ऑडिटरी सिग्नल्स, क्योंकि तब हमारे अंदर और कोई प्रोटेक्टिव चीज़ें नहीं थी, तो हम बहुत दूर दूर तक के जो साउंड्स होते थे उनको रिसीव करने के लिए ये ईयर्स रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन दिस इज अगेन ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, हमें आज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इस वजह से वो फंक्शनल नहीं रहे, नॉन फंक्शनल हो गए। फाइन, सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन वी ह्यूमन बींग, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे तो डिस्कस करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अलावा एक और फिनोमिना होता है इसके अंदर, एटाविज्म, सिमिलर टू वेस्टिजियल ऑर्गन, दिस इज क्वाइट डिफरेंट ओनली इन दिस वे कि एटाविज्म के केस में क्या होता है, ये ऑर्गन्स हमारे एंसेस्ट्रल स्पीशीज में तो प्रेजेंट थे, लेकिन आज हमारी स्पीशीज के कुछ ही मेंबर में कभी कभी अराइज होते हैं, सारे मेंबर्स में ये प्रेजेंट नहीं मिलते हैं। ऐसे फिनोमिना को हम एटाविज्म कहते हैं बस। दैट मीन्स जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं, फॉर एग्जांपल हेयर ग्रोथ, किसी किसी ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी सरफेस। दिस शोज दैट आवर ह्यूमन बींग हैज़ बीन इवॉल्व फ्रॉम मंकी स्पीशी। तो उस समय बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती थी मंकी की स्पीशी पे या बॉडी पे, लेकिन आज हमारे अंदर वो हेयर ग्रोथ नहीं मिलती सारे मेंबर्स में, बट किसी किसी मेंबर्स में वो अपीयर हो जाती है, एंड दैट शोज द एटाविज्म। सिमिलरली ह्यूमन बेबी व्हेन बोर्न विद टेल, दैट मीन्स जो लास्ट में जो बोन पे जो टेल होती है, छोटी सी टेल पार्ट होती है, जो अगेन एंसेस्ट्रल स्पीशी का साइन है, जो तब होती थी, लेकिन आज हमारे ह्यूमन के डिफरेंट मेंबर्स में नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी एकदम किसी एक मेंबर में या कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अराइज हो जाती है, ऑरिजिनेट होती है। तो दैट अगेन द एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन विच शोज कि हाँ हमारी आज की स्पीशी किसी ना किसी एंसेस्ट्रल स्पीशी से इवॉल्व हुई होगी। अब फोर्थ एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल। ना एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहता है, दिस एक्चुअली एविडेंस शोज दैट fetal stages or embryological stages of different species when compared with shows similarity. दैट मीन्स जब हम डिफरेंट स्पीशीज की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस को स्टडी करते हैं तो उन डिफरेंट स्पीशीज की एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हमें एक पर्टिकुलर या 2-3 स्टेजेस ऐसी आती है जो बिल्कुल सिमिलर होती है सबकी। मतलब जब एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हेन द बेबी इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर्स वोम। जैसे अगर मैं बात करूं बैट का एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज, फिर हम बात करते हैं बर्ड का, फिर हम बात करते हैं हम ह्यूमन बींग्स का, हम बात करते हैं फिशेस का। तो यहाँ पे अगर मैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस की स्टडी करूँ लाइक फिश की, सैलेमेंडर की, बर्ड्स की,
मेन की। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम रेप्टाइल्स का भी ले सकते हैं, स्नेक्स, मेन, राइट। तो हमें क्या दिखता है कि ये जो डिफरेंट स्पीशीज है, यहाँ पे हम इवोल्यूशन की सीक्वेंस में अगर लिखें तो ऑब्वियसली पहले फिशेज आई थी, फिर एम्फीबियंस आए थे, फिर रेप्टाइल्स आए थे लाइक लिजार्ड, एंड देन बर्ड्स और मैन एक साथ आए थे। नाउ जब इवोल्यूशन हुआ था तो फिशेज से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स आए थे। अब यहाँ पे हम अगर बोले कि इसकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है, इसकी जो है, इसकी है, ऑल हैव एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस लुक्स लाइक सिमिलर, सबके स्ट्रक्चरल जो स्टेजेस हैं वो बहुत हद तक सिमिलर दिखती हैं, बट व्हेन दे ग्रोज कंप्लीटली इनटू देयर एडल्ट फॉर्म दे बिकम एंटायरली डिफरेंट। सो एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेजेस है दैट ऑल्सो शोज सम वे और द अदर वे सिमिलैरिटी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, की ये सारी स्पीशीज एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड कहीं ना कहीं एक से दूसरी स्पीशी और दूसरे से तीसरी स्पीशी इवॉल्व हुई होगी। सो दिस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इज ऑल्सो शोइंग दैट एवोल्यूशन हैज बीन टेकन प्लेस। नाउ नेक्स्ट एविडेंस है हमारा इसमें कनेक्टिंग लिंक्स, सॉरी कनेक्टिंग लिंक से पहले हम पढ़ रहे हैं फॉसिल्स। Now as we all know what are fossils? Fossils are basically the remains of, dead remains of plants and animals. जब भी कोई plant, animal या living organisms की death होती है तो वो buried हो जाते हैं soil में, they get buried into the soil and they degrade or decompose or degenerate into their different forms, and then after those fossils may convert in the form of coal, petroleum, mineral, iron or somewhere other natural resources, या कुछ एनिमल्स के फॉसिल्स एज सच ऐसे ही पड़े रहते हैं, प्लांट्स के भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं। तो जो भी डेड रिमेन्स है किसी भी प्लांट का और एनिमल्स का, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। अब कैसे ये फॉसिल जो है एविडेंसेस है इवोल्यूशन का, बेसिकली फॉसिल्स आर द बेस्ट एविडेंसेस कि इवोल्यूशन हुआ होगा। सो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। अब कैसे हम फॉसिल्स के स्टडी करके ये पता करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा, हम यहाँ पे फॉसिल्स को दो तरह से उनकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं, हम फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा। सबसे बेस्ट मेथड है स्टडी करने का रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में हम क्या देख रहे हैं, हियर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से बनता है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द डिपॉजिट्स और यू कैन से particles, whether it is dust particle which comes along with the water or air and settle down at somewhere or other where at some places। तो उस पर्टिकुलर टाइम जोन या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के वक्त या उस एरा के वक्त जो भी एयर और वाटर के थ्रू सेडिमेंट सेटल डाउन हुए होंगे तो उसकी एक लेयर बन गई होगी लैंड पर या कहीं पे भी। फिर दूसरा टाइम जोन आया होगा तो दूसरे टाइम जोन के साथ में भी जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए होंगे उसकी दूसरी लेयर बन गई होगी। एंड वन मोर थिंग, तो उस सेडिमेंट्स में कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड के उस एरा के स्पीशीज के डेड रिमेन्स कहीं ना कहीं कुछ तो प्रेजेंट होंगे। तो हर एक लेयर सेडिमेंट्स के अंदर कोई ना कोई फॉसिल्स हमको मिलेंगे। तो जब सेडिमेंट्री रॉक आज के टाइम पे हमें मिलता है, वो सेडिमेंट्री रॉक को बनने में हजारों और बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हर टाइम जोन के सेडिमेंट्स में वहाँ के उस टाइम के फॉसिल्स जरूर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो उस टाइम के जोन के फॉसिल्स उनमें मिले होंगे और उनको हम जब सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स को हटाते हैं अलग अलग करके, तो ये टाइम जोन सबसे पुराने से ओल्डेस्ट की तरफ हम देखते हैं। हम सबसे ऊपर की जो लेयर हटाएंगे उसमें कुछ एनिमल्स के फॉसिल्स या प्लांट के फॉसिल्स मिले होंगे, फिर दूसरी लेयर हटाई होगी उसमें कुछ और मिले होंगे, फिर तीसरी लेयर हटाई होगी। हमने जो भी लेयर डिफरेंट लेयर्स हटाई वो टाइम जोन के सीक्वेंस में हटती है क्योंकि वो बनती भी उसी सीक्वेंस में है। अब हर एक लेयर में जो उस टाइम के फॉसिल्स थे उनको हमने कंपैरेटिव स्टडी जब करा फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन टू दी ओल्डेस्ट सिचुएशन तक या प्रेजेंट टाइम से ओल्डेस्ट टाइम तक, तो हमें कहीं ना कहीं उनके बीच में कंपैरिजन देखने को मिला
कि एक स्पीशी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशी से कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई होगी. सो दिस वाज द रिलेटिव मेथड which best explained the evidences of evolution for a particular species. या आज जो different species evolve हुई है कहीं ना कहीं वो ancestral species के अंदर changes होने की वजह से ही हुई है. and क्या क्या changes हुए होंगे उनके organs या different parts में वो भी इन fossils की study से आज हम पता कर लेते हैं. सेकेंड इसके अंदर मेथड होता है कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन डेटिंग मेथड से हम फॉसिल्स की एज पता कर लेते हैं कि ये फॉसिल्स कितना पुराना है, किस टाइम पीरियड का फॉसिल है, किस टाइम जोन का फॉसिल है, और उनमें फिर अगेन क्या क्या चेंजेस हुए होंगे. कार्बन डेटिंग मेथड वैसे तो हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं. बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, हमारा जो कार्बन कंपाउंड है, आज हमारा ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका सेल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना है. तो कार्बन तो बहुत हद तक हर सेल्यूलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पे जो कार्बन होता है हमारे लिविंग फॉर्म में दो तरह के कार्बन मिलते हैं. वन जो नेचुरल कार्बन है, दैट इज कार्बन 12 विच इज द नेचुरल कार्बन, बट कार्बन 14 इज द रेडियो एक्टिव कार्बन. दिस इज आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्लांट एंड एनिमल और एनी लाइफ फॉर्म, उनमें ये जो दो तरह के कार्बन मिलते हैं, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं तब तक दोनों का अमाउंट सेम होता है, कार्बन 14 का भी और कार्बन 12 का भी. बट कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब एनिमल की डेथ होती है या प्लांट की डेथ हो जाती है तो आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म या आफ्टर द डेथ ऑफ सेल, उस सेल में प्रेजेंट जो भी कार्बन 14 का अमाउंट होगा वो धीरे धीरे डीके होने लगेगा. डीजनरेट या डीके मतलब लॉस होने लगेगा. और उस डीके का एक पर्टिकुलर फिक्स रेट होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आधा अमाउंट ऑफ कार्बन 14 डीके हो जाता है, और वो होती है हाफ लाइफ पीरियड. अकॉर्डिंग टू दैट हाफ लाइफ पीरियड, वो पर्टिकुलर आई थिंक इट इज ऑल अबाउट 5160 ईयर्स हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 के डीके होने की. तो जब वो डीके होता है तो वो टाइम पीरियड हम नोट कर रहे होते हैं. हम जब कोई भी फॉसिल हमें मिलता है हम उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन 14 अवेलेबल है और कितना अमाउंट ऑफ कार्बन 12 अवेलेबल है जो नेचुरल कार्बन है. जब दोनों के अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड को यूज करके हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि उस फॉसिल्स की हमें एज पता चल जाती है कि वो कब मरा होगा या उस एनिमल या प्लांट की डेथ कब हुई होगी. विद वी कैन फाइंड इट आउट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 लेफ्ट इन द फॉसिल. वो जब भी हमें वो फॉसिल मिला है उस टाइम पे कितना कार्बन 14 बचा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी एज डिटरमाइन कर लेते हैं. सो इन दिस मैनर ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन द कि इवोल्यूशन हुआ था और उस फॉसिल के मिलने से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए होंगे और उसकी एज कितनी है वो भी हम डिटरमाइन करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. द लास्ट एविडेंसेस विच एक्सप्लेन द इवोल्यूशन इज कनेक्टिंग लिंक्स. Now connecting link is the basically ये एक ऐसा एविडेंस है जिसमें हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो दोनों के बीच में कॉमन मिलते हैं. दैट मीन्स वो दो डिफरेंट स्पीशीज तो हैं आज, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उनमें कॉमन मिलते हैं. दैट मीन्स वो कनेक्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में. दैट कनेक्टिंग लिंक के जो फॉसिल्स हैं, मतलब ऐसे फॉसिल्स, एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले थे जिन्हें आज तो हम फॉसिल के उसमें ही रखते हैं या कनेक्टिंग लिंक्स में रखते हैं. उनके अंदर क्या है, दो डिफरेंट चीज़ों के कैरेक्टर एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए हम उन एग्जाम्पल को कनेक्टिंग लिंक में रखते हैं और कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि अगर इनमें दो डिफरेंट स्पीशी के कैरेक्टर हैं तो ये किससे इवॉल्व हुए होंगे. नाउ कनेक्टिंग लिंक शोज एन एग्जाम्पल. पहला अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें वायरस, which shows an connecting link between living and non-living. Second example है Proterospongia, which shows the connecting link between Protozoa and Porifera. Phylum Sponges का ये. Third, Neopilina, connecting link between Mollusca and Arthropoda.
Archaeopteryx, connecting link between birds and reptiles. So there are certain example which shows different connecting link between different species or different phylum. That means इस एक ही organism में इन दो different species के characters हमें मिल रहे थे. That means कहीं ना कहीं ऐसा show करता है. जैसे अगर मैं Archaeopteryx को समझाऊं तो obviously Archaeopteryx में एक ऐसा फॉसिल मिला था जिसमें बर्ड के भी कैरेक्टर थे और कुछ कैरेक्टर उसमें रेप्टाइल्स के भी थे. तो ये शो करता है कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स से ही बर्ड इवॉल्व हुई होंगी. So this is all about the evidences of evolution. Now in the next lecture we will go into talk about the human evolution.